So, as Sir said that, Hiren Sir said that upcoming new year is going to bring in new challenges and everything. So definitely knowledge is something that even that is needs to be upgraded and everything. And MEPRO is enthusiastic as well as committed to bring in these kind of knowledgeable things to its fellow eminence. And doing that, we bring in some renowned personality, we try to bring in the experiences and try to reap their experiences and get benefit from them, right? So doing that today in with us, we have a gentleman with us today. He is a man with decisive personality who believes in holding his strong ground when it comes to opinions. I'm talking about Mr. Yashovardhan Azad, who is the son of a freedom fighter and a former chief minister of Bihar, Shri Bhagwatja Azad. He is popularly known for his service in servicing as special director in IB, that is the acronym of Intelligence Bureau of India. During the tenure, he ensured the security of top level national politicians and leaders, which includes the foreign nationals, including Mr. Bill Clinton. So by that you would be knowing his personality, his position, right? Also, moving forward, he served as Secretary for Security in Government of India, which again holds the position for taking care of the security of Prime Minister of India, right? So we have such personality with us. Due to his renowned service, he was been awarded with several medals for his services. But he's a man, as I said, having a decisive personality. He didn't stop there. Moving further, after his retirement, actually he's an ex-IPS. He's an ex-IPS. Let me remind you that. Moving further, after the retirement, he also co-founded an organization named Deep Strat, which is basically providing strategic help to the companies to fulfill out their achievements, their strategic decisions, right? So even he's actively available on Twitter, so you can get to learn about him from the Twitter also, right? So I'll not take much of her time, but when he comes up here, he'll try to share his experiences, his decisions that he has taken, and based on that decisions, what are the impact. So we try to learn how does a decision helps, or what are the impacts of it, how to deal with those impacts from his journey. So not taking much of our time, ladies and gentlemen, please have a round of applause for Mr. Yashovardhan Azad. Please, sir. Thank you very much. कुछ ज़्यादा ही अच्छा इंट्रोडक्शन पढ़ दिया हमारा. So I hope you're not disappointed. इतने सारे युवाओं को देखकर थोड़ी सी कसक और जलन तो होती ही है, लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. कल तो आपके ये त्रिमूर्ति HHK से मुलाकात हो गई थी, हिरेन, हार्दिक, कुणाल से, और अन्य जो आपके डायरेक्टर्स हैं अक्षय, दिलीप, जे, उनके लिए भी उनका अभिनंदन करता हूँ. हिंदी में बोलूँगा तो शायद बेहतर रहेगा. ओके. कहते हैं यूथ इज़ पैराडाइज. जवानी एक ऐसी चीज़ है जो फिर वापस नहीं लौटती, और यही जवानी है जिसमें आप खो भी सकते हैं
गवा भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। और जब भी मैं कॉलेज, अपने पुराने कॉलेज जाता हूँ, हिंदू कॉलेज में दिल्ली में या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अनायासी ये लाइन ज़रूर मुझे याद आती हैं कि ये गलियाँ अभी तक हंसी और जवां हैं जहाँ हमने अपनी जवानी लुटा दी। और इसलिए मेरी बात को मानिए, आज इंडिया यूथ बल्ज पे है। इतना यूथफुल नेशन जो कुछ भी अचीव कर सकता है। आज हमारी आबादी चाइना से बढ़कर है। ये कोई खुशी की बात नहीं है। लोग आपको भले हमारे इकोनॉमिस्ट कहेंगे कि द डिविडेंड्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, आई डोंट बिलीव इन दैट। आज हम ओवर पॉपुलेशन के चलते ही जितने रिसोर्सेज हैं उनके क्रंच को हम महसूस करते हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर कहूँगा कि यूथफुल डायनेमिक्स जो हमारे कंट्री में अभी विजिबल है, उसे देख के ऐसा लगता है कि कम से कम 50 साल में हम सबसे अग्रगणी देश में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आज आपके 12वीं वर्षगांठ पर बहुत ही आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उससे ज़्यादा मुझे खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे आकर बात कर सकूं, चर्चा कर सकूं। और मैं बहुत उत्साहित हूं। कल जो मेरी बात आपके इन युवा 3 फाउंडर्स से हुई, मुझे इतनी खुशी हुई है कि घर के लड़के, राजकोट के लड़के जो यहाँ से पढ़े हैं, जिन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है और जो कहीं भी बाहर जा सकते थे इस डिग्री को लेकर, किसी भी देश के कोने में, अहमदाबाद तो जा ही सकते थे, दिल्ली जा सकते थे, बेंगलोर सॉफ्टवेयर पार्क और कितने जगह जो ऐसी जगह है वहाँ पे जा सकते थे। उन्होंने राजकोट को चुना और मैं इस बात से इतना उत्साहित हूँ। और जब मैंने पूछा कि आप भारत तो नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, आपके इस जज्बे के लिए और आपके इस देश के प्रति। बहुत कम ऐसे युवा आज हमारे पास हैं। सारे आईआईटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो विदेश चले गए हैं। और जब हम अपने अखबारों में आप देखते होंगे, बड़ी खुशी से कहते हैं कि गूगल का भी इंडियन है, ये भी इंडियन है, तो वो तो यहाँ छोड़ के चले गए हैं वहाँ। और इसलिए छोड़ के गए ये सोच के कि वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होगी। बिल्कुल है उनके लिए, लेकिन देश के लिए तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हुई। और हम ये तरसते हैं कि वो यहाँ पे आएंगे और कुछ अच्छी बातें कह देंगे यहाँ के बारे में। नहीं, ये सिलसिला ठीक नहीं है। और इसलिए मैं आपको डबल बधाई देता हूँ। और मुझे इस बात से इसलिए खुशी, और कल मैंने अपने स्पीच को, जो प्रिपेयर्ड स्पीच था, मैं चेतन को मैंने कहा अब वो मैं नहीं भूलूंगा, अब मैं दिल की बात कहूँगा, क्योंकि मन की बात तो नहीं कह सकता। पीएम बहुत बड़े आदमी और मैं एक इतना सा रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं राजकोट आया हूँ। इतिहास से मुझे प्रेम है और महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं। हर दृष्टि से महात्मा गांधी आदर्श हैं। हमारे स्टडी के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का ये लगा है, वो है महात्मा गांधी। और उनकी बाल्यावस्था यहाँ पे हुई थी और उनका घर शायद कोई शिशु मंदिर या ऐसे स्कूल की ओर चल रहा है। गुजरात एक ऐसी ज़मीन है जो अन्य राज्य से बिल्कुल अलग है। गुजरात के लोग आईपीएस आईएएस में नहीं आते हैं, मैंने ये नोटिस किया। वो इसकी ज़रूरत नहीं समझते। इस बात की खुशी भी है मुझे कि हम जो है, हम तो सरकारी पैसे लेकर एक व्यवस्था करते हैं, जबकि गुजराती लोग अपना खुद बिजनेस करते हैं और योगदान देते हैं। तो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। गुजरात का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, चाहे वो
उसकी खपत इलेक्ट्रिसिटी की हो चाहे रोड्स की हो, वो एक अग्रगण्य राज्य में माना जाता है। और इसलिए मैं कहता हूँ मेरी शुरुआत इस बात से होगी कि आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप एक ऐसे आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं जिसका योगदान बहुमूल्य है हमारी जीडीपी में। 7.4% कंट्रीब्यूशन है, 81 लाख की नौकरी देते हैं, $51 बिलियन 21 की कमाई थी। और बल्कि आप अगर नैस्कॉम और मैकिन्सी का रिपोर्ट पढ़ें तो अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य चीज़ों का, तो हमारी जो एनुअल आय है, इनकम है, वो 350 बिलियन तक पहुंच सकती है। इसलिए ऐसे इंडस्ट्री में अगर ऐसे युवा लोग पढ़े लिखे, शिक्षित ही नहीं बल्कि एजुकेशनल हम कहते हैं, बिकॉज मेयर एकेडमिक्स इज नॉट एजुकेशन, तो इससे आईटी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल होगा। आज के समय की दुनिया में मैं सिर्फ आपको ये एहसास कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो डेस्क से जुड़े हैं, आप दिन भर काम करते हैं, लेकिन आपको ये महसूस होना चाहिए कि टुडे दैट इंफॉर्मेशन इज रियल पावर। और जेम्स मैडिसन जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले थे, उनके प्रारूपकार थे, उन्होंने कहा था दैट इंफॉर्मेशन इज द पावर एंड इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज अबाउट। आज इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री is connecting the consumers, is connecting the companies, is connecting the country for a better governance. Ultimately, इस सारी चीजों का ध्येय क्या है? Is better governance, is better opportunities to people. हमेशा याद रखिएगा कि आपका कंट्रीब्यूशन जो देश के लिए है, वो जरूरी नहीं है कि हर सोल्जर या हर पुलिसमैन जो फाइट कर रहा है बॉर्डर पे, वो तो है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ईच वन ऑफ यू इज कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस माइट। और इसको समझना और महसूस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज टू फील अ प्राउड इंडियन you should also have a set of responsibilities. आज जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, द डिजिटल हाईवे, द डिजिटल लैंडस्केप, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने 2015 में कहा था, विल मेक अ डिजिटल लैंडस्केप। देयर इज अ डिजिटल इंडिया एक्ट जो अभी आ रहा है। एंड व्हाट इज इट अबाउट? पहले पत्तों में जानकारी लिखी जाती थी, ब्राह्मण लोग याद रखते थे अपने आप और मंत्रोच्चारण करते थे, बाद में स्क्रिप्ट्स बने, बाद में कागज़ आया, कागज़ पे ये हुई, बाद में टाइपिंग हुई। टुडे इज अ डिजिटल वर्ल्ड। और इंडिया में जितना ज़्यादा इसका फैलाव हुआ है, द डिजिटल लैंडस्केप इज एब्सोल्युटली ऑसम। और डिजिटल इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको 3 चीज़ समझनी चाहिए जो कि आपकी निजता से जुड़ी हुई है। डेटा प्रिवेसी, कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपके पास रहे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं टू योर लव्ड वंस, टू योर मदर दैट यू आर ऑल राइट, टू योर लवर दैट आई लव यू, टू योर बॉस झूठ कि हम बीमार हैं, आज नहीं आ सकेंगे। डोंट यू वांट दैट टू बी केप्ट सीक्रेट? यस। So why it is encrypted? अब आप ये कहिए कि अगर सरकार ये चाहती है कि हम आपके एन्क्रिप्शन को तोड़ दें, इसलिए कि हो सकता है कि एक टेररिस्ट भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, जो कि सही है।
कल आपके एग्जीक्यूटिव ने बहुत रुचि दिखाई कि हम आईवी में थे तो क्या करते थे। तो मैंने कहा कुछ बात तो बता सकता हूं, सब नहीं बता सकता हूं। तो इनक्रिप्शन का जो डिबेट है वो बहुत बड़ा डिबेट है। अमेरिका में एक क्लिपर्स चिप का इजाद किया गया था, वो 90s में। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युवा हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस। क्लिपर्स चिप का ये रोल था कि वो डेटा को एक बैकडोर दिया जाएगा ताकि हम वो पढ़ लें व्हाट्सएप, और मेटा डेटा जो है हम डाउनलोड करें, लाखों बिलियंस यूनिट्स, और उसके बाद हम पढ़ें, ताकि 1,00,000 आपके मैसेजेस में से शायद वो कोई 2 ऐसे टेररिस्ट के इंटरचेंज मिल जाए। नाउ यू सी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस। क्या ये होना चाहिए? विल यू अलाउ दैट? कंट्री के इंटरेस्ट में क्या है? Should we allow backdoor in encryption? These are the debates we have to think about. आज डिजिटल इंडिया एक्ट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रिवेसी, जैसे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सो व्हाट शुड वी डू अबाउट सर्विलेंस? क्या सर्विलेंस में कोई रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? क्या सरकार सब चीज में सबको सर्विल कर दे? और एक पुलिस अफसर रिटायर्ड की हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूं। दिस इज अ great battle today. Second is cyber security. साइबर सिक्योरिटी, आप जब आईटी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को, तो अपना इंफॉर्मेशन कितना सिक्योर करना है वो बताते हैं लोगों का। आज साइबर सिक्योरिटी में चाइना में पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, लाखों की तैनाती में उन्होंने हैकर्स क्रिएट किए हैं जो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल साइट्स को हैक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। बम्बई में जो बिजली चली गई वो हैकर्स का ये था। AIMS मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो हुआ वो हैकर्स का ये था। सो साइबर सिक्योरिटी, और मुझे बड़ी खुशी है कि राजकोट में बहुत ही बड़ा एक सेंटर साइबर सिक्योरिटी का आ रहा है, जहां पे ऑलमोस्ट 1,500 पीपल विल बी ट्रेन्ड। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लुक इनटू इट। हमारा थिंक टैंक भी इसको जरूर देखेगा। डेटा प्रिवेसी बिल जो अभी आ रहा है, इसके बारे में हमारे थिंक टैंक ने एक प्रिपेयर किया है कि डेटा प्रिवेसी, डेटा डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट में हमें क्या क्या हम इसके बारे में कहना चाहते हैं कि क्या डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी उतना शक्तिमान होगा क्या कि वो सही डिसीजन दे सके। और एक बहुत बड़ी चीज जो हो रही है, जो आप सबको सोचना चाहिए इसके बारे में, वो ये है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो आरटीआई के खिलाफ है। हार्दिक बताना भूल गए शायद कि मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी था 5 साल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, थी, अब तो खैर उसे थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया गया है, चाहे किन्हीं भी कारणों से। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रह के मैं इंफॉर्मेशन बचाता था, कोई चीज़ नहीं बताता था। और जब मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आया तो जानकारी देता था। तो लोगों ने पूछा कि आप इस विरोधाभास को कैसे संभालते हो? तो मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आईबी में रह के मुझे मालूम है कौन सी जानकारी नहीं देनी चाहिए, और ये भी मालूम है कौन सी जानकारी दी जा सकती है। इसलिए मैं उन्मुक्त भाव से जानकारी देता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी यूनिट में जब आप उसको संभालते हैं तो आपको लीडरशिप के एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। नेतृत्व एक ऐसी चीज है जो थोड़ी तो विरासत में मिलती है और थोड़ी जो कि आपको एजुकेशन से मिलती है। और तभी आज का जो अंत वाला पैरा हमारा रहेगा
वो पर्सनालिटी एनहांसमेंट के बारे में रहेगा, आपके लिए व्यक्तिगत। एक आपको नेतृत्व का उदाहरण देता हूं। 2004 में इस देश में एक बड़ी ज्वलंत समस्या उठी। क्या इंडियन टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए टेस्ट मैच और वनडेयर मैच खेलने के लिए या नहीं? वैसे तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 2003 की बात है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या था? आपको करगिल के युद्ध के बारे में मालूम है या नहीं? हाँ, तो जरा बताइए, नहीं तो मुझे लगेगा आप सो रहे हैं, इसीलिए मैं करगिल की बात ला रहा हूं। यह भी नेतृत्व से संबंधित है। जैसे आप सोएंगे मैं कोई कहानी शुरू कर दूंगा, लेकिन यह नेतृत्व से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। करगिल, कांधार में जो हाईजैकिंग हुआ था आपको मालूम है, इंडियन जहाज का। उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, वो भी मालूम है आपको। नादी मारा में मैसेकर हुआ कश्मीरी पंडित्स का, वो भी मालूम है। JNK असेंबली पे अटैक हुआ, वो भी आपको मालूम है। ऐसे माहौल में वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा को गए। उसमें हमारे भाई साहब भी शामिल थे, कीर्ति आज़ाद बस में गए थे, साथ में देवानंद को देख रहे थे बराबर। तो एक कोशिश की थी वाजपेयी जी ने, जो कि उनके ऐसा लीडर शायद बहुत कम, बिरले ही पैदा होता है। सब कुछ के बावजूद वे पूरे विश्व को दिखाना चाहते थे, और ये उनकी लीडरशिप थी कि इतने सेटबैक्स के बाद भी वो आदमी, जो कि ऑपरेशन पराक्रम में 1 साल तक हमारी फौजें बॉर्डर पर रहीं, उसने ये सोचा कि नहीं, दोस्ती का हाथ तो हम बढ़ाएंगे, ताकि पूरे विश्व को मालूम हो कि हम शांति के पक्षधर हैं। और उस आदमी की दाद पूरे विश्व ने दी जब उसने, और देखिए, उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी में डाल दिया। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। बात शुरू हुई तब कि अब इसको कैसे, इसका ये किया जाए, क्रियान्वयन कैसे किया जाए, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। क्योंकि 15 साल बाद क्या इंडियन टीम को टूर करना चाहिए ऐसे माहौल में? और विभिन्न संस्थाएं आ गई कि बिल्कुल वो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे हमारी टीम की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। सौरभ गांगुली ने कहा कि हम कैसे जाएं जब सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है। ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम थी, उन्होंने वहीं से कह दिया, सीनियर प्लेयर्स की फैमिलीज़ ने बहुत प्रेशर डाला है, हम जाएं या नहीं जाएं। लोगों ने कहा ये तो सेल आउट हो गया पाकिस्तान को, कैसे जाएं, हमारी टीम जो है मर जाएगी वहाँ जाके। तो फिर लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि एक डेलीगेशन भेजा जाए, सिक्योरिटी डेलीगेशन इंडिया से पाकिस्तान, जो कि सारे वेन्यूज़ को देखेगा, वहाँ पे चर्चाएं करेगा और असेसमेंट करके एक रिपोर्ट देगा कि टीम को जाना चाहिए या नहीं। तो उसके बाद फिर खोज शुरू हुई कि किसको भेजा जाए, कौन जाना चाहेगा। तो उन्होंने चुना यशवर्धन आज़ाद का नाम कि ये ठीक रहेगा। और उसका कारण ये दिया कि 99 में जब पाकिस्तान टीम यहाँ पे आई थी, तो हिंदुस्तान सेना ने बहुत हुल्लड़ किया था, शिवसेना ने भी कहा था कि हम उनको आने नहीं देंगे, पिजविच ये कर दिए थे। तो मुझे उनका राष्ट्रीय ये बनाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर, तो मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई थी उनसे। 2003 में हम एक टीम लेके फिर पाकिस्तान गए। हमारे साथ BCCI के 2-3 ऑफिशियल्स थे। और जैसे हमने लैंड किया लाहौर, उसके बाद फिर जाके हम वहाँ से इस्लामाबाद गए, और इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग हुई। और जब हमारी मीटिंग हुई तो आप समझ सकते हैं, हमारे जो शिवशंकर मेनन साहब थे, हाई कमिश्नर, बहुत ही हमारी तरफदारी करते थे। उन्होंने कहा क्या मैं आपके साथ भेजूं किसी अफसर को एम्बेसी के? मैंने कहा नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ ऐसी चीज़ों पे बात होगी या बहुत जद्दोजहद सिक्योरिटी मामले पे होगी। और हमारे सामने वहाँ के एयर मार्शल्स और जनरल्स और ICI के टॉप ऑफिशियल्स बैठे थे, पूरे 11
देखने में डर भी लग रहा था थोड़ा, क्योंकि हम लोग तो 4-5 ही थे इधर। और उसके बाद जब चर्चाएं शुरू हुई तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई थ्रेट ही नहीं है, इंडियन टीम के नाम पे तो कोई थ्रेट नहीं है और सब कुछ आराम से निकल जाएगा। तो धीरे से मेरे मुंह से निकल गया, हाँ कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन मुशर्रफ साहब पे ही 2 बार अटैक हो चुके हैं। तो जब आप हमारी सिक्योरिटी की बात करें, हमारी टीम तो कुछ नहीं है, आपके देश के राष्ट्रपति। नहीं नहीं नहीं, वो बात तो दूसरी है। तो मैंने कहा इतने ब्लास्ट हो चुके हैं, आप कह रहे हैं पेशावर में खेलो, वहाँ तो बम चल रहे हैं, तो थोड़ी तो मुश्किल होगी हमें। और कराची में तो रोज़ बंदूकें चलती हैं, तो वहाँ भी आप कह रहे हैं टेस्ट मैच खेलो, तो 7 दिन में तो हम मर जाएंगे वहाँ। तो धीरे धीरे जब चर्चाएं शुरू हुई तो 1.5 घंटे हो गए। तो बोले आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं तो सब कुछ चाहता हूँ। बोले जैसे? मैंने कहा जैसे कहा हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन। तो फिर वो देखने लगे। फिर मैंने उनको कहा टैक्टिकल डेप्थ, तो फिर और देखा। फिर मैंने कहा एंटी सबोटाज चेक, फिर मैंने कहा स्पेशल DFMDs, फिर मैंने कहा एंटी माइन डिटेक्टर, स्वीपर्स। बोलते बोलते वो जो होम सेक्रेटरी साहब थे वो उठ गए और उन्होंने कहा कि क्या मैं आपसे अलग से कमरे में मिल सकता हूँ जब ये मीटिंग ख़त्म हो जाए? मेरे सारे व्यक्ति यहाँ बैठे हैं और आपकी आशंकाओं का जवाब देंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। जब इनसे 1.5-2 घंटे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने आपके जो आशंकाएं हैं और सुन ली हैं और हम इसके बारे में प्रयास करेंगे और आप सारे वेन्यूज़ पे अब जाइए और हर वेन्यू पे आपको एक सिक्योरिटी प्लान मिलेगा और उसके बाद उसके अनुसार आप उस पर डिसाइड कीजिए। मैंने कहा ठीक है। बाद में मैं होम सेक्रेटरी कमरे में गया, वो एक पुलिस अफसर थे, कमाल पाशा, यस। तो उसके बाद गए, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं सब समझता हूँ, आप जो कह रहे हो, आप एक प्रोफेशनल हो और मैं समझ गया आपके डिमांड्स को। मैं पूरी कोशिश करूँगा डायरेक्टली बात करके प्रेसिडेंट से कि आपको ये चीज़ें मिल जाएं। इस बीच में आप देख लो एंड यू पिच योर डिमांड्स एट एवरी प्लेस। आई सेड थैंक यू। दैट वाज अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ प्रोफेशनल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। जब मैं पेशावर गया तो मान लीजिए कि मेरे पैर थरथरा रहे थे, क्योंकि पेशावर में जब गवर्नर साहब के यहाँ मिला तो खैबर पास के बारे में बात कर ले, खैतूर पख्तूनवा के बारे में बात करें, तालिबान के इसके बारे में, हमने ये गोली मारी, तोप चला दिए, ये किए वो किए। अब हमारे यहाँ तो ये सब होता नहीं है, तोप चलना ये चल, और बड़े ही कैजुअल टर्म्स में बात कर रहे थे। और IG साहब ने कहा हम तो सब कुछ संभाल देंगे। तो हमने कहा भी, मैंने कहा सर हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ने तो आए नहीं हैं, हम लोग तो खेलने के लिए आए हैं, तो तोप वोप की बात तो आप कीजिएगा भी नहीं उनके सामने, वो डर जाएंगे हमारे लड़के, वो ऐसे ही बहुत डरे हुए हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप चलिए खैबर दिखा के लाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, हमें खैबर देखने की कोई आवश्यकता है, हम बहुत खुश हैं आपका स्टेडियम देख के। फिर हम स्टेडियम में गए और स्टेडियम इतना छोटा सा और एक बोल ऐसा है और पहाड़ चारों तरफ से, तो स्टैंड ऑफ वेपन्स के लिए बहुत अच्छा टारगेट है वो। इट्स वेरी सिंपल, यू नो। तो मैंने जब जाके आई साहब, मैंने कहा ये मैच कैसे होगा यहाँ पे, ये तो पूरा एक्सपोज्ड वल्नरेबिलिटी है। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा हमें सब कुछ चाहिए, हमें व्यू कटर्स चाहिए, हमें स्टैंड अलोन स्नाइपर्स चाहिए, हमें अटैक फॉर्मेशंस के लिए चाहिए, स्वॉट टीम्स चाहिए, उसमें बहुत कुछ, बहुत एफर्ट लगेगा। अरे नहीं मियाँ, आप तो टेस्ट यहाँ करा दीजिए, हम सब देख लेंगे, यू नो द यूजुअल स्टाइल। तो आई केप्ट क्वाइट। और उसके बाद हम पेशावर गए, उनका होटल देखे तो और डर लगा। वो ऊपर छत पे दिखाया मुझे, बोले यहाँ हम लोग खाट में बैठ के फ्रंटियर स्टाइल खाना खाते हैं। मैंने कहा बहुत खूब, इसमें तो मज़ा आ जाएगा जब हम लोग आएंगे। तो उसके बाद हम लोग भागे वहाँ से। उसके बाद हम कराची गए। कराची देखने में भी आपको डर लगेगा, इतनी ज़्यादा आबादी है, 18 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक एक जगह ओवर ब्रिज बने हुए हैं, कल्वर्ट्स बने हुए हैं, और बोले यहाँ भी मैच खेलिए। बाद में जब हम मिले, फिर फैज़लाबाद, मुल्तान वगैरह सब जब हो आए, तब जाके मैं वापस गया। और इस बीच में तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैच होगा नहीं होगा, आज़ाद साहब करा रहे हैं नहीं करा। वहाँ पाकिस्तान में मैं हीरो हो गया, यहाँ तो कोई पूछता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में सोचे कि यही आदमी क्रिकेट ला रहा है, सारे हमारे पीछे घूम रहे। मैं भी बहुत लंबा हाइट हमारा थोड़ा सा बढ़ गया था वहाँ पे। और मैं बताता हाँ सोचेंगे ज़रूर, और बड़ा गंभीरता से मैं जवाब देता था।
अंदर से तो इतना डर लग रहा है। जब मैं वापस गया मुझे समझ नहीं आया मैं क्या रिपोर्ट बनाऊं। सो देन मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि क्या तुम किस लिए वेट कर रहे हो। मैंने कहा एक चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ, अगर वो आ जाएगा तो फट से लिख दूंगा, और नहीं तो फिर सोचेंगे क्या करना है, कुछ ही जगह करा। वो दूसरे दिन पेपर में आ गया, अखबार में, मुशर्रफ ग्रांट्स प्रेसिडेंशियल स्केल ऑफ सिक्योरिटी टू द इंडियन टीम। उसी दिन मैंने रिपोर्ट बनाई और उसमें ये लिखा, लेकिन पेशावर में टेस्ट मैच नहीं, एक दिन जाएंगे, प्रैक्टिस 2 घंटे, दूसरे दिन खेलेंगे दिन में, और उसके बाद फ्लाइट से निकल जाएंगे। कराची सेम थिंग, हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय, हेलीकॉप्टर का स्टैंड बना रहेगा, वहाँ पे जाएंगे, एक दिन मैच खेलेंगे, दूसरे दिन निकल जाएंगे। मुझे एक बहुत बड़े बल्कि अडवाणी जी का फ़ोन आया रैक्स पे, क्या यशवर्धन जी वहाँ कराची में मैच नहीं हो सकता है? क्योंकि अब 20 साल हो गए हैं, इसलिए बात कर सकता हूँ मैं। 20 साल में आरटीआई में कोई भी जानकारी आप दे सकते हैं। वैसे भी ये कोई ख़तरनाक जानकारी नहीं है। अडवाणी जी दादा बहुत ही लाइक करते हैं क्रिकेट, सिनेमा, नाइस, ही इज़ अ वेरी सिंपल मैन, बेसिकली वेरी गुड मैन। तो मैंने कहा सर, अंकल, दादा, आई मीन वो थोड़ी सी मुश्किल होगी कराची में। नहीं नहीं, तो आप बात कर लीजिए डीआईबी साहब से। और फिर तो मैंने कहा ठीक है दादा। मैंने फट से अपने दोस्त को फ़ोन किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, अरुण सिंह को, कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, क्या करना चाहिए मैच के बारे में। तो उसने कहा हाँ, मुशर्रफ साहब का रिक्वेस्ट आया है, कराची के हैं, कि वहाँ पे टेस्ट मैच होना चाहिए। तो मैंने, कुछ कर सकते हो? बोले हाँ हाँ, मैं लिख दूंगा एमईए के तरफ से कि मैच मुश्किल है। किसी तरह हमने वहाँ पे मैच कैंसिल कराया। और आप देखिए, जब मैं टीम के साथ पहले दिन कराची गया, तो मुझे याद है 11 मार्च की शाम थी वो, 12 मार्च को मेरा जन्मदिन था। 11 मार्च को हम लैंड करके प्रैक्टिस में गए, और 12 मार्च को हमें मैच खेलना था, और 12 मार्च के रात भाग जाना था वहाँ से। और 11 मार्च के रात हमें ख़बर आई कि स्पेनिश मेट्रो पे बॉम्बिंग हुई है। अब आप समझ लो कि आप एक पाकिस्तान ऐसे देश में हैं, आपको ख़बर मिली है कि बॉम्बिंग हो गई है, अल कायदा का बॉम्बिंग था। तो मैंने कहा तो बड़ी खुशी की बात है। आइए, तारिक जमाल, इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ जो बराबर आपका जो व्यक्तित्व है, किसी भी लेवल पे जो आप लीडरशिप ये करते हैं, कॉन्टैक्ट विथ मेन एंड रिस्पेक्ट फॉर प्रोफेशनलिज्म, ये एक ऐसी चीज़ है जो काम आती है। कराची में जब मैं पहले गया था, तो उस हुजूम में, उस भीड़ में, रेंजर्स भी थे, ये भी थे, पीछे पीछे स्टेडियम में दौड़ते रहते थे, क्योंकि मैच कराने में पाकिस्तान को काफ़ी पैसे मिलते, और उनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था वो वर्चुअल भीख मांग रहा था। इतने $1 मिलियन उनको मिलने वाले थे, तो पीछे पीछे दौड़ते रहते थे वो वहाँ पे रेंजर्स वगैरह सब। तो जब तारिक जमाल और चौधरी, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी लगा, क्वाइट आदमी, डीआईजी ऑपरेशंस। तो मेरी उनसे जो चर्चा हुई, तो हम बात कर रहे थे प्रोफेशनलिज्म में, कैसे बॉम्ब अटैक्स को ये करते हैं, दशहरा कैसे हम मनाते हैं, वो मुहर्रम में क्या क्या करते हैं। और जब ये घटना हुई तो हमने पूरी व्यवस्था तो देखी, और सुनिए, कहता ना कि मिजरी नेवर कम्स अलोन, दुख एक ही साथ पूरा आपको घेरेगा। 12:30 बजे रात में मुझे एक फ़ोन आया हाई कमीशन से कि एक थ्रेट आया है रॉ की तरफ से इंडियन टीम को। तो मेरे तो वाकई होश उड़ गए। मैं कूदा अपने बेड से, सोने ही गया था 12:15 बजे, और मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैंने तारिक जमाल को फ़ोन किया। वो आदमी 15 मिनट में आ गया, और उसके बाद हमने अगले 3.5 घंटे सिर्फ होटल में किया, जितने टेक्निकल चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी में, टैक्टिकल डेप्थ को बढ़ाना, बैरियर्स, बोलार्ड्स को एडजस्ट करना, अंदर के सिस्टम्स को ये करना, एडमिशन एक्सेस कंट्रोल्स को ये करना, करते करते 4:30 बज गए। 4:30 बजने के बाद मैं कहा और कुछ कर सकते हैं? तो सिक्योरिटी में एक प्रिंसिपल है,
30% assurance you get after physical verification. इस जगह को आप physically check करें तो you are 30% sure. 30% और यानी till 60% अगर आप उसमें technical equipment use करें. You know, you use various gadgets, electronic gadgets, minesweepers, whatever, you know, there are so many of them. 60% हो गया. 30% सिक्योरिटी आपको और मिलेगी अगर आप डॉग्स का इस्तेमाल करें. A dog can have, there are 24 senses important for explosives. एक डॉग को आप ओवरलोड नहीं करना चाहिए. You should give around 6 kind of different explosives. So if you use that complement, then you are 90% safe. तो हो गया 30, 30, 30. तो बोले बाकी 10% का क्या होगा? Somebody asked me. I said that you have to leave it to God. There is no such thing as foolproof security. Then you have to take a decision and then you say this is it. इसके बाद होगा मरना तो मरो. What else can you do? So around 4:30 we left. मुझे याद है जब ब्रेकफास्ट में हम आए तो वो जॉन राइट है मैनेजर और वो कौन था? Was it Saurabh or some player? Balaji, I think. बोलता है सर इट लुक्स लाइक अ लेट नाइट पार्टी फॉर यू. रोज योर बर्थडे ना सर, कहीं गए थे आप बाहर? हम बोले हाँ वैसा ही है कुछ. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज जब हम जा रहे थे खेलने के लिए तो एक आईएसआई का हमारे साथ था. तो वो मेरा चेला हो गया था बिकॉज क्रिकेट का कभी टिकट मांगता था कभी है. तो उसको मैंने कम्प्लीटली ब्राइब करके अपने तरफ कर लिया था. तो व्हेन वी वर पासिंग थ्रू क्लिफ्टन एवेन्यू तो बाएं तरफ एक बंगला था. तो मैंने इसको देखा और मैंने कहा यही है ना. एंड आई स्माइल. तो मेरी तरफ देखा उधर देखा फिर मुस्कुराता है बोलता है जी सर. वो दाऊद इब्राहिम का बंगला था. दाहिने तरफ वो नेवी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था. एंड देन वी लैंडेड अप एट द स्टेडियम. जब स्टेडियम में था तो हम और तारिक जमाल वो लोग तो अंदर देख रहे थे क्रिकेट मैच. हम लोग बाहर देख रहे थे कि वो जो हेलीकॉप्टर का जो बनाया हुआ है डी वो सेफ है ना. लोग उसको पहुंचते थे बिकॉज आना था एंड निकलना था. सो दैट इज़ हाउ वी फिनिश्ड कराची. जब मैं टूर करके आया तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, प्रेस ने पूछा आपने कैसे डिसीजन लिया कि क्रिकेट होना चाहिए? आप तो दूसरे कंट्री में थे, किसके भरोसे आपने ये दिया? दे क्वेश्चनड मी. हाउ डू यू रिप्लाई टू दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कि जब आप डिसीजन लेते हैं ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में तो क्या सोचते हैं आप? सबसे पहली बात मेरे दिमाग में ये थी कि अ मैन लाइक अटल बिहारी वाजपेयी wants cricket not for cricket, for his cricketing diplomacy. For what? वाजपेयी जी वैसे नहीं थे, वो बहुत फेमस थे पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ के लिए. फॉर द इमेज ऑफ द कंट्री कि भारतवर्ष इतना बड़े दिल का है कि उसने कहा चलो हम क्रिकेट डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं. What should you do? Shouldn't you take a risk in the interest? That is a decision you have to take. Calculated risk अगर आपने कभी लिया ही नहीं जिंदगी में तो जिए क्यों फिर? अगर हर चीज में if you play safe, that's no life. No life at all. खूब रिस्क लिए हैं मैंने. एंड एक चीज और है, मैलिफाइड ही नहीं होना चाहिए आपका रिस्क. एक चीज और बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि नेतृत्व जो है बिल्कुल ही शीर्ष स्तर पे है. नेतृत्व तो हर यूनिट के हेड में है. आपको एक डेडलाइन मिलता है. आपकी कंपनी जो सॉल्यूशंस दे रही है, आपके लोग कनेक्टेड हैं फ्रॉम मद्रास टू कैलकाटा टू दिल्ली टू अमेरिका, वेरियस स्टेशंस. तो आपको डिफरेंट तरह के डेडलाइंस हैं. अगर आपने डेडलाइंस नहीं मीट किया तो फिर क्या आपका नेतृत्व है? आई मीन इट्स सो इम्पॉर्टेंट. सारी चीज़ें अगर आप अपने ये फाउंडर्स पर ही लोड कर दीजिए, ये तो गलत है. दे डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज.
आपको ये डेलीगेट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके लिए क्योंकि ये समझते हैं कि आप सक्षम हैं, आपके व्यक्तित्व में वो जवाबदारी है कि आप उसे कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि ये जो पीरियड है आपका, इसमें नेपोलियन ने पता है क्या कहा था? नेपोलियन ने कहा था कि एन आर्मी ऑफ लायंस led by a lamb would be defeated by an army of lambs led by a lion. आप समझ सकते हैं इसका क्या अर्थ है? So, अभी you are in mid career or maybe 10 years, 15 years or something. This is the time to gun for higher responsibilities. This is the time to show your merit. And एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, आईटी इंडस्ट्री में रह के सिर्फ आप प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रहे हैं, यू आर हेल्पिंग द कंट्री. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू 51 lakhs contributing 51 billion. You can imagine where the country will go. Digital is the future of this country. कल जब मेरी बातचीत हुई इस HHK मॉडल से, I was, so motivated to speak to you. इतनी चीजें जो मैंने प्रिपेयर की थी वो हटा दी, उसकी जरूरत नहीं है. It is a heart to heart chat to exhort you, आपको अर्ज करने के लिए. टाटाज में जो लोग जाते हैं, हमारे समय में तो नौकरियां थी नहीं, और एक बिहारी क्या करेगा, परीक्षा देता रहता है बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. तो अब मुझे याद है जब मैं टाटाज के लिए अप्लाई किया था, टाटाज के लिए बीए के बाद, तो हमारे पिताजी बैठे थे, मेरी माताजी वैसे मैट्रिक फेल थी, और हमारे पापा जो हैं वो बहुत कुछ मतलब स्कॉलरशिप, एमए, बीएल, इकोनॉमिक्स सब कुछ किया हुआ था. लेकिन मेरी माताजी को ज़्यादा सेंस था, कॉमन सेंस जो कहते हैं. मेरे डैड जो है वो हवा में उड़ते रहते थे बराबर. तो मैं अपने रेफरेंस साइन करा था, वो एम्स के डायरेक्टर बैठे थे अग्रवाल साहब, तो बोले अंकल जरा इसको साइन कर दिए. तो वो साइन कर रहे थे, तो माँ ने पूछा डैड से कि ये कहाँ के लिए अप्लाई कर रहा है. तो डैड ने कहा वो कोई साबुन तेल बेचने वाली कंपनी है, उसके लिए अप्लाई कर रहा है. ये पर्सपेक्टिव था, मैं आपको बता रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट 1975. उसी दिन मैंने छोड़ा, मेरा लास्ट इंटरव्यू था वो इन बॉम्बे. इट्स अ ग्रेट टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर देयर. उसी दिन क्या 2-3 महीने बचे थे यूपीएससी के, मैंने वो फॉर्म भरा एंड आई गॉट आउट. लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज वो समय नहीं है. मेरी बेटी को मैंने पूछा कि जरा आईएएस आईपीएस थोड़ा है, हु केयर्स. तो कोई हमारे फैमिली में जाता ही नहीं है आईएएस आईपीएस. कोई एमआईटी जा रहा है, कोई स्टैनफोर्ड जा रहा है, ऐसी भाषा बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता. सो थिंग्स आर डिफरेंट टुडे. आज डिग्निटी ऑफ लेबर है. आज जो सड़क पे जो खोमचा लगा रहा है, उसके बारे में सोशल मीडिया में निकलता है. चाट भंडार, कुल्फी स्टोर, और लोग तारीफ करते हैं, लिखते हैं. और एक चाट स्टॉल या मालवीय नगर में बंद होने वाला था, तो ये क्राउड फंडिंग कहते हैं, क्राउड फंडिंग से लोगों ने बचाया. दिस इज अ न्यू इंडिया. और इस न्यू इंडिया में सबका रोल इतना कंट्रीब्यूटरी है, कनेक्टिविटी कितना है. ये एचएचके ट्रायो कल मुझे बता रहे थे कि हमने किस ट्वीट में क्या लिखा है. और शॉक्ड, थोड़ा स्कैर्ड भी था, क्योंकि कभी कभी मैं कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें भी लिख देता हूं अपनी बेबाकी में. सो
2004 का जो मैंने बताया आपको किस्सा, वो इसलिए बताया कि लुक एट द डिसीजन मेकिंग, ऐसा दिल वाला, ऐसा जिगरी. दैट इज व्हाई अटल इज रिमेंबर्ड एज एन अटल. एंड दैट मैन, ही हैड ट्रू करेज एंड ही वाज अ पोएट. क्या जिंदगी है, मरमर के जिया जिंदगी तो क्या जीना है, थोड़ा जी के भी जियो. Have a love for poetry, have love for music, dance, speak out, chase your dreams, work hard, and take responsibility. और कितनी चीज़ें बताऊं. मैं जब एसपी था, एसपी सीहोर, 25-26 साल की उम्र थी, घुस गया था मैं बहुत अर्ली. पहली बार परीक्षा दी, गलती से आ गया था, तो इसीलिए 25 साल में एसपी बन गया था, 25 या 26 साल में एसपी सीहोर. वहाँ पे एक आपको चीज़ें बताता हूँ जिससे कम्युनल सिचुएशंस कैसे बिल्डअप होते हैं इस देश में. और आज की जो व्यवस्था है, मैंने एक ट्वीट किया कि एक प्रभाकर एसपी है 2010 के बैच के, बरेली में कांवरिया का जुलूस जा रहा था, मस्जिद के सामने कुछ ऐसा हुआ, लाउड म्यूजिक, थ्रेटनिंग पॉस्चर्स. उसने क्राउड को क्लियर किया. कोई नहीं घुसता है डर से ऐसे सिचुएशन में. उसने लाठीचार्ज किया, डिस्पर्स किया, अमन शांति व्यवस्थापित की, और 3 घंटे में उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया और वहां के एसएचओज सस्पेंड किए गए. हमारे देश में ईमानदारी की हम बात करते हैं, लेकिन सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं, डरते हैं. हमने उसके बारे में ओपन ट्वीट किया. अभी तक पता नहीं 1,500 या 2,000 लाइक्स आ चुके हैं और जम के उसके फेवर में ये आ रहे हैं. मेरा ये कहना है, बराबर रियल लाइफ हीरोज को आप जिंदगी में सपोर्ट करें, रियल लाइफ हीरोज को नहीं. एक कचड़ा वाला है जो कचड़ा साफ करता है, जब एमसीडी का स्ट्राइक हो जाता है, कितने लोग उसकी तारीफ करते हैं? बहुत कम करते हैं. हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं बिकॉज वी थिंक दिस डजंट अफेक्ट अस, बट दे आर द रियल हीरोज ऑफ लाइफ. The cleaners, the sewer pit cleaners. कितने बार हम देखते हैं कि हमारे एरिया में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कभी उनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उनको तो सैलरी मिलती है इकट्ठा करके. लेकिन मैं अपने बराबर स्टाफ को कहता हूँ, जो भी नया आया है उसको चाय दो, उससे पूछो, उससे बात करो. हमारे घर से मालदा आम आया था, तो मालदा आम हमने सबको दिया, उसको भी 5 दिया. ही स्टार्टेड क्राइंग. ऐसे पागल है क्या, व्हाई यू क्राइंग, यू शुड बी हैप्पी. बोलता नहीं सर, किसी ने नहीं दिया था अभी तक कुछ. और बड़े धनी लोग रहते हैं उस इलाके में, बहुत धनी लोग रहते हैं. सो अगर आप अपनी जिंदगी खुद के लिए जीते हो, समाज के लिए कुछ किया नहीं, देश के लिए कुछ किया नहीं, तो लानत है ऐसी जिंदगी में, कौन पूछता है? सो व्हेन आई वांटेड टू टॉक टू यू, मैं ये बात करना चाहता हूं कि यूथ में जो पॉसिबिलिटी है, आप पहाड़ तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. मैं बताता हूं, यू हैव, मुझे दुख है कि मेरा फिजिकल कैपेसिटी नहीं है कि मैं 18 घंटे काम करूं. व्हेन आई वाज यंग, मुझे लगता था ये खाने में टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, हबड़ हबड़ करके खाता था, एसिडिटी हो गई. मंदसौर में राइट्स हुए. किसके राइट? पोस्ट इंदिरा गांधी. आपको मालूम है? आप बच्चे हो, वैसे पता नहीं, आप कुछ वेरी यंग, राइट? तो जब हत्या हुई तो एक अजीब तरह का उन्माद फैला. उसमें कुछ पार्टी वाले भी जिम्मेवार थे, ये बात सही है. मैं मंदसौर ऐसे एक छोटे जिले में था. मंदसौर जिला एक चीज के लिए मशहूर है, किस लिए? ओपियम. और वहाँ ओपियम फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ज़मीन दी जाती है कि आप
अफीम का उत्पादन करें और इतना आप सप्लाई करें गवर्नमेंट रेट पे। सो जाहिर है वो ज़्यादा पैदा करते हैं, बाहर बेचते हैं और वो अफीम का व्यापार जम के चलता है और वो पूरा जो जिला है उसी के लिए जाना जाता है। उसकी भी कहानी बताता हूँ उसके बाद। तो जब इंदिरा गांधी, मुझे 8:30 बजे सुबह फ़ोन आया डीआईजी एनके सिंह का, अरे तुमको मालूम है इंदिरा जी की हत्या हो गई है। अरे मैंने कहा वेरी सैड सर, तो ज़रा देख लेना। तो मैंने कहा क्या देख लेना? आई डिडंट अंडरस्टैंड। अरे तुमको मालूम नहीं है कि सिख बॉडीगार्ड्स ने ये किया? अब मंदसौर में एक मोटा टेलीफोन, और तो कुछ था नहीं वहाँ, अखबार भी आता था दोपहर में। तो उसके बाद फिर पूरे देश में जो रिएक्शन हुआ, तो मंदसौर में भी मुझे खबर मिली कि कुछ यूथ कांग्रेस वाले चौक पे आ गए हैं और उधम मचा रहे हैं और ये कर रहे हैं। कलेक्टर कोई नई आई थी, उसने कहा कि आज़ाद साहब आप, मैं जा रही हूँ सर्किट हाउस, तो वहाँ मंत्री जी ने बुलाया है, तो आप आएंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊँगा, ये समय ही नहीं है वहाँ जाने का। वो मंत्री बुला रहा है तो डाइवर्ट करने के लिए बुला रहा है, यहाँ पे यूथ कांग्रेस का ये हो रहा है और ये आग अभी फैलेगी। तो वो तो तेज़ थी, वो तो चली गई मंत्री के पास कि अच्छा भला यहाँ पे जो होगा। मैं पहुँचा वहाँ पे, जहाँ पे एजिटेशन चल रहा था, वो दुकान वालों को पत्थर मार के जला रहे थे, कुछ कर रहे थे। मैं था, करीब 4 आदमी हमारे साथ थे और हमने वहाँ पे टीयर गैस फायरिंग की। थोड़ा बहुत पत्थर उत्थर मारा, थोड़ी बहुत चोट लगी, वो ख़ास नहीं, और मारा तो फिर उसको क्लियर किया। तभी मुझे वायरलेस सेट पे पता लगा कि वो जो गुरुद्वारे के महंत हैं, उन्होंने मुझे मैसेज, एसपी साहब, कप्तान साहब को बोलो कि यहाँ पे गुरुद्वारा जलाने के लिए आ रहे हैं लोग, ऐसी खबर मिली है, मैं देख रहा हूँ जमाव हो रहा है, किसी तरह बचाइए। तो मैं अकेला था वहाँ पे, 4 आदमी तो थे मेरे साथ, किसी को छोड़ना भी था वहाँ पे। तो मैंने तभी किसी सब इंस्पेक्टर को छोड़ा और वायरलेस पे बहुत ज़ोर से हल्ला किया। मैंने रिपीटर वायरलेस से बताते जाओ कि टाइगर आ रहा है, टाइगर आ रहा है, मतलब कि पहुँच गया, टाइगर इज़ एसपी। तो तब तक मैंने किसी तरह उनको रोको। तब तक में थोड़ी एक कोई जवां मर्द डीएसपी था, मर गया बेचारा, ही वाज वेरी गुड, छेतिया, डीएसपी छेतिया, यंगस्टर, वेरी ब्राइट। वो दौड़ा हुआ तब तक वहाँ पहुँचा था, और जब तक मैं पहुँचा क्राउड को हमने भगा दिया। कोई ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं की, क्योंकि ऐसा कुछ ये नहीं था। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर आप अपना डिटर्मिनेशन दिखाएं वहाँ पे, तो फिर वो क्राउड भाग जाता है, उसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। तो जब हम वहाँ पे गए तो गुरुद्वारा साफ हुआ। उसके बाद पता लगा कि कुछ सिख समूहों के बीच में लोग शायद जाएंगे, वहाँ पे फिर हम गए और इस तरह हमने सारा क्लियर कर दिया। रात में हमें मैसेज आया कि 300 ट्रक वाले वो जयपुर भागना चाहते हैं उसी रूट से। तो इंदौर से ट्रक जा रहे थे, हमने 350 ट्रक पास किए रात में। 9 बजे रात से जो सिलसिला चला तो सुबह 5 बजे ख़त्म हुआ। लेकिन सबसे खुशी अभी भी होती है कि उन ट्रक वालों की चिट्ठी आती है कि आज़ाद साहब आप कैसे हो, भला है आपका, ये वो सुना आपकी बेटी की शादी हो गई। और जब मैं सागर में एसपी गया तो पता लगा कि लोग बैरियर क्रॉस करके 4 ट्रक वाले आपके घर आना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? तो वो आए हमारे घर, बोले सर आसाम से आए थे, वो चाय थी तो आपके लिए लाए। Those were the same truck guys whose lives I had saved. So these are the good feelings you get in a place. और बैड फीलिंग्स भी होती है, वैसे ऐसा नहीं है खाली गुड फीलिंग्स ही होती है। हमने वहाँ पे 8 क्विंटल ओपीएम पकड़े, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड होगा, बड़ी खुशी होगी आपको ये जान के। और मुझे 5.5 महीने हुए थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस पूरा बिल्कुल टीम लगा हुआ था। सर आपकी किस तरह की इंटेलिजेंस स्कीम आपने बनाई और किस तरह से उसको क्रिएट किया कि इतना बड़ा आपको ये मिला। मैंने कहा देखो बहुत डेडली इंटेलिजेंस है वो, मैं आपको सीक्रेट तो नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि आप इतने इकट्ठा हुए हो तो हमको तो काफ़ी पब्लिसिटी मिलेगी, इसलिए बता रहा हूँ। मेरा इंटेलिजेंस देखो दिखाता हूँ, मैंने जेब से निकाला। पार्वती माँ का पोस्ट कार्ड था, लिखा था गरोठ, गरोठ एक डिवीजन है वहाँ पे, गरोठ एक इलाका है
यहाँ पर ऊंट से 2:30 बजे करीब 2 क्विंटल के आसपास ये आदमी ले जा रहा है। कप्तान आज़ाद तुम ही पकड़ना। और हमने जो सबसे भ्रष्ट हमारा इंस्पेक्टर था उसको बुलाया, मुझे मालूम था ये चोर है। मैंने कहा तेरे को भेज रहा हूँ, ये पकड़ के लाना है। कोई बहादुरी तो है नहीं, है ना, इंटेलिजेंस मेरा है, तू जाके पकड़ेगा। अगर नहीं पकड़ा, बहाना बनाया, तेरे को कर दूंगा बर्खास्त। अगर आया तो तेरा नाम होगा ही, रिवॉर्ड नहीं दूंगा। वो गया, पकड़ के लेते आया। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू गेट माई इंटेलिजेंस। कहने का मतलब ये है, और ये मैं बड़े संजीदगी से कह रहा हूँ, अगर आपके कंज्यूमर्स में, आप आईटी इंडस्ट्री के हैं, अगर आपके कंज्यूमर्स को, जिनके लिए आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, 2 चीज़ों के बारे में आप पर विश्वास हो जाए कि हाँ, ही सेड ही विल डिलीवर, देन यस ही विल डिलीवर। दूसरा, द डिलीवरी शेड्यूल विल बी मेंटेन्ड, यानी कि जो टाइम हमने कहा है उसी में आपका डिलीवरी होगा। यू विल हैव द ट्रेमेंडस ट्रस्ट ऑफ द पीपल। ट्रस्ट ऑफ योर क्लाइंटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब आप डांट खाएं कि आपने डेडलाइन नहीं मेंटेन की है, मुझे इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कंपनी में जा चुका हूं, मुझे यही बताते हैं कि साहब ये डेडलाइन नहीं फॉलो करते कुछ लोग। देन यू मस्ट अप्रिशिएट दिस फैक्ट। These are all, leadership attributes. नेतृत्व का मतलब है जिंदा दिली कि हाँ, हम तो करेंगे इस काम को चाहे जो हो जाए। If I have to sit for 12 hours, I'll do it. So, you have to, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, ये सारी कहानियाँ इसलिए बता रहा हूँ, इस कहानियों का सारा एक आप पे एक अमिट छाप पड़नी चाहिए। Each one is a hero in himself. आप पे कल फिल्म बना देगा कोई तो आप हीरो हो जाओगे, और क्या, और कौन सी चीज़ है, व्हाट्स द बिग डील। विकी कौशल ने किसी एक आदमी को फ्रेम कर दिया, बना दिया, एंड आई एम टेलिंग यू, ईच मैन इज अ हीरो। टेक द स्टोरी ऑफ अ लाइफ ऑफ अ कचड़ा बॉय, इज अ हीरो। 12 साल की उम्र में, जो आपकी उम्र है, कैलेब एंडरसन बिकेम अ चाइल्ड प्रोडिजी। अब वो नासा साइंटिस्ट बनेगा। 12-year-old child prodigies are in everything: violin, sports, cricket, everywhere. मैं जब सागर में एसएसपी था, तो वहाँ पे जब आप जाओ तो बिल्कुल लगता था कहाँ बीहड़ में आ गए, 1857। और वो जो ज़मीन है वो बुंदेलखंड की है। बुंदेलखंड के लोग बड़े बहादुर होते हैं, पुलिस को ऐसा टक्कर देते हैं कि दांत तले आपको चने दबाने पड़ते हैं। बिल्कुल, दे फाइट वेल, यू रिस्पेक्ट देम एंड दे रिस्पेक्ट अ टफ ऑफिसर। एक तो बुंदेलखंड इधर है, उधर चंबल है। अब बुंदेलखंड में ड्राउट आता है, बुंदेलखंड में जो वो वहाँ पे लैंड होल्डर्स हैं, वो चांदी के बुलेट्स लगा के आते हैं कप्तान से, खाली कप्तान से मिलने के लिए, सैल्यूट करने के लिए। इट्स द लैंड ऑफ ब्रेव गाइज। काम वाम कुछ नहीं है, बंदूक चलाओ, मारो, लड़ाई लड़ो, डकैती। तो हमारे उस समय में 85 में, हाँ बाय द वे, जब मंदसौर में जब भी मैंने पकड़ा 8 क्विंटल, तो फिर मज़ा आ गया सबको, वाह वाह बहुत हुई। और मुझे वोरा साहब का फ़ोन आया, चीफ मिनिस्टर मोतीलाल वोरा। तो यशवर्धन जी, ये बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा लगा है, और ऐसा है कि सागर में बहुत समस्या है, और हिमू के शर्वानी कांड हो गया है, 13 लोगों को चाकू मार दिया है, ये है वो है, तो मैं आपको वहाँ ट्रांसफ़र करूँ। वो डिविजनल हेडक्वार्टर है ग्वालियर, और 2 ही तो इम्पॉर्टेंट है इसमें तीसरा। तो मैंने कहा सर थैंक यू फॉर किकिंग मी अपस्टेयर्स। तो अरे नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, मुझे मालूम है कि सारी विभिन्न पार्टी के लोग गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, मेरी बहुत तारीफ़ की इन्होंने, बहुत अच्छे एसपी हैं, इनको खाली यहाँ से बाहर लगा दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने बात भी मान ली कि जब इतने प्यार से कह रहे हैं तो इनकी बात तो सुननी चाहिए।
तो मैंने कहा मेरी कोई खेती है नहीं यहाँ अफीम की, मैं तो खुशी से चला जाऊँगा। तो उन्होंने ये भी कहा, बोले नहीं नहीं, वहाँ वो यूथ का एजिटेशन हो रहा है आपके ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़, सो बहुत बड़ा डेलीगेशन निकाल रहे हैं, मुझे इंटेलिजेंस ने खबर दी। मैंने कहा वो तो हमारे पास आए थे बोले थे हम घेर लेंगे आपको, जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा सर आप चिंता मत कीजिए, मेरी प्राइवेट कार कॉन्टेसा लगी हुई है, मैं रात में निकल जाऊँगा 12 बजे, मुझे कोई रुचि नहीं है यहाँ रहने में। एंड आई फेल्ट वेरी सैड, लेट मी टेल यू दैट। कह तो दिया मैंने, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अकेले रहता था वहाँ, और दो गैंग थे वहाँ, एक पंडित राम शरण के और दूसरा शकील का। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे, एक दूसरे के आदमी मार, प्रतापगढ़ जिले में एक दूसरे के आदमी को किल करते थे, और फिर वो थ्रेट भेजते थे वो पोस्ट कार्ड पे, दे थॉट कि हम भी डर जाएंगे। उल्टी कोई ख़ास थ्रेट नहीं था वैसे। एंड आई वॉज वेरी बिटर, बट आई केप्ट क्वाइट। आई सेड मेरा कोई पर्सनल तो है नहीं यहाँ पे, बट टू बी लगता है कि हाँ थोड़ा रिकग्निशन होना चाहिए। वहाँ पे क्या रिकग्निशन मिलेगा? दो तो अखबार निकलते हैं सारे वो 2-2 पेज वाले, व्हाट रिकग्निशन? वहाँ तो भोपाल में खबर भी नहीं जाती है, बट यू हैव टू फेस दिस। और मैं रात में निकल गया वहाँ पे, सागर जब मैं पहुँचा, सागर पहुँचने के साथ लोगों ने कहा ये तो एडी इलाका है। एडी इलाका मतलब कि इट्स एन एंटी डकैती इलाका, यानी कि एसपी कैंपेन में ही रहते हैं, ऑफिस में मैं ऑफिस गया तो लगा कि बिल्कुल एक झोपड़ी टाइप की थी, और वहाँ पे नक्शे बने थे, हत्या 32, डकैती 100। तो ये था हमारा ऑफिस, डकैती, हत्या, नृशंस, रेप, यही सब। तो मैंने कहा इनको हटाओ, सारे मैंने बोर्ड्स हटा दिए वहाँ पे, सब कुछ ये किया, और कुछ पैसे मांगे सरकार से, कुछ मिल गए 80,000, दैट्स ऑल। 80,000 था, हाँ, या 1 लाख, 26-86 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद बगल में एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पे एक क्या कहते हैं, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को वैसा बनाया, और उसमें एक तरफ ग्लास पैनल लगाया। जहाँ भी मैं रहता हूँ 2 चीज़ ज़रूर करता हूँ, अपने ऑफिस के सामने एक ग्लास पैनल जो कि बाहर हरितमा ग्रीन को देख सकूं, और दूसरा 12 बजे हमारी कॉफ़ी और 4 बजे, आज नहीं मिली वैसे। तो ये मेरा उसूल है, 45 ईयर से चल रहा है। तो वैसा मैंने ऑफिस बनाया, वहाँ भी एक भी नक्शे नहीं थे, और ऑफिस में बैठना शुरू किया। उस समय एक गब्बर सिंह डाकू का नाम था, जो कि उस इलाके में बड़ा मशहूर था। तो मुझे तो कभी मालूम नहीं कि एंटी डकैती के बड़े पुराने ठस्सू होते थे अधिकारी, मोटी मोटी मूछ वाले। मैं तो जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला आया था वहाँ पे, तो लोग हंसते थे, हैं ये साला बिहारी आ गया है, क्या करेगा यहाँ, इसके बस का नहीं है। बुंदेलखंड में ऐसे लोगों की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ जैसे मैं गया तो ये गब्बर सिंह के आतंक तो थे। सीमावर्ती इलाके में कभी कोई किडनैपिंग हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो जब गांव वाले आते थे बड़ा दुख लगता था कि भाई इतनी लुटाई हो रही है, हम कुछ कर नहीं सक रहे थे। बॉर्डर था ललितपुर, और एक हाईवे था जो जाता था वहाँ पे। तो धीरे धीरे फिर हमने कुछ गलत भी कार्य किए, आपको बता सकता हूँ। अब बहुत बुरा लगा मुझे करके, उसने किडनैपिंग की हमारे इलाके में, किडनैपिंग की। अब कोई तरीका ही नहीं था, कोई बताता नहीं था डर से। अब क्या किया जाए मुझे मालूम नहीं। अब मुझे ये भी मालूम था कि ये बगल वाले एक एसपी के यहाँ रहता था, और एसपी उसको सपोर्ट करता था, हमारे ही मध्य प्रदेश में शिवपुरी वाले इलाके में। तो फिर बाद में बहुत सोचा हमने, और हमारी टीम ने कहा कि सर आप क्यों इतना इसके बारे में सोचते हैं। मैंने कहा मॉरल क्वेश्चन तो है, हम कैसे काउंटर, तो हमने काउंटर किडनैपिंग की। और शर्म तो आती है बोलने में, लेकिन हमने काउंटर किडनैपिंग उसके रिलेटिव्स की और लेकिन उसको बड़े अच्छे तरह से रखा। जब काउंटर किडनैपिंग की तो फिर उसे ये आभास हुआ कि नहीं ये एक्शन ले सकते हैं। और हमने जब काउंटर किडनैपिंग की, बाद में उस पर प्रेशर हमने इतना बढ़ाया। एक बार का वाक़या आपको बताता हूँ। एक मंदिर था, देवी के मंदिर में जाता था, और वो भी वहाँ आता था। 3:30 बजे रात में उस देवी के मंदिर में गया तो उस पुजारी ने कहा कि सर वो गब्बर सिंह जी भी अभी आए थे। तो मैंने कहा कब आया था? बोलते 1 घंटा पहले, और बोले थे कि उनको मालूम था कि आप आने वाले हैं, बोले कप्तान को सलाम कह दीजिएगा।
इस तरह की वहाँ पे पैंतरेबाजी चलती थी। हरनाम सिंह राठौर एक बीजेपी के एमपी थे, हमारे दोस्त बन गए थे। एक दिन रात में हमारे आईजी एंटी डकॉइटी आए हुए थे, उनकी पार्टी थी, कमिश्नर आए थे, मेजर जनरल तरलोक सिंह वो भी आए हुए थे, और मुझे 9:30 बजे रात में एक खबर आई हरनाम सिंह राठौर एमएलए की कि आज़ाद साहब क्या कर रहे हैं। मैंने कहा पार्टी दे रहा हूँ, सारे लोग यहाँ हैं, आप भी आ जाओ अगर शरबत पीना है तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं शरबत तो हम बाद में पिएंगे, ऐसा है कि वो सरेंडर करना चाहता है। तो मैंने कहा कौन? बोले वो बात आपको मालूम है कौन सरेंडर करना चाहता है? तो मैंने कहा मेरे सामने? बोले हाँ। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उसको मालूम है कि पंडित जी उसको मारेंगे नहीं। अब आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एनकाउंटर में नहीं मारेंगे, वो बाकी किसी ज़िले में सरेंडर नहीं करना चाहता है। तो मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, और आईजी कमिश्नर सब आए हुए थे क्योंकि दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर आने वाले थे, मोतीलाल वोरा जी, ये सागर की बात है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कब कहाँ कैसे? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं था, क्रेडिट मुझे मिला। कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने कुछ नहीं किया लेकिन सारा क्रेडिट मुझे मिला। तो हरनाम सिंह राठौर ने मुझे कहा कि आप 11 बजे वो बंडा जंगल के रेस्ट हाउस में आ जाइए। तो मैंने कहा मोटू जी आप रहिएगा कि नहीं वहाँ पे? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो रहूँगा। मैंने कहा फिर ठीक है। और ये कांग्रेस का रजीम था, वो दोस्त थे मेरे बीजेपी के बहुत ख़ास। तो 11 बजे मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने कहा अपनी वाइफ को कि मैं ज़रा जा रहा हूँ एक काम से, तो तुम ज़रा झेल लो इन लोगों को पार्टी वार्टी। उसके बाद मैं गया तो मेरा वो गनमैन पीछे, आरआई को पता लग गया था, रिजर्व इंस्पेक्टर, वो कूद गया, और एक और कांस्टेबल शायद थे, और हम लोग बंडा के रेस्ट हाउस में गए। बंडा के रेस्ट हाउस में पता चला कि उसने ये कहा है ठीक 2:30 बजे रात में फलाने स्पॉट पे बंडा जंगल पे वो आएगा सरेंडर करने के लिए। अब मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ अकेले, तो आरआई ने कहा नहीं अकेले तो हम नहीं जाने देंगे आपको, क्या पता कितना सही है नहीं है। अब मुझे भी थोड़ा डर तो लगा। ये कहने की बात है, कितने भी नेतृत्व की बात हो अंदर से डर सबको लगता है। तो मैं कल बता रहा था इनको, जब भी हम लॉ एंड ऑर्डर में, आप देखिए नूह के राइट्स में 5 सब इंस्पेक्टर्स कितने बुरी तरह घायल हुए। तो जब कप्तान आगे चलता है, चलना तो पड़ेगा उसको। आप कहते हैं यंग हैं, डैशिंग लगते हैं, ये लगते हैं, तो फिर आप झेलो भी, अपनी जिम्मेवारी भी दिखाओ। तो उसमें आपको आगे तो चलना पड़ता है। और उस तरफ से पेट्रोल कैन और पत्थर और क्या क्या नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा एक सिचुएशन का, बट यू हैव टू गो इन फ्रंट। तो इसलिए जब आप आगे जाते हैं तो आपको उसको झेलना भी पड़ता है, यू हैव टू फेस इट। तो बंडा के जब इसमें गए, हम बोले जाना तो पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उसने कहा आ रही लेकिन मैं आपके साथ चलूँगा, एक आदमी को जाना होगा। मैंने ठीक है चलो। तो एक आरआई हमारे साथ गए थे, अपना रिवॉल्वर और स्टेन गन और वगैरह लेके पीछे, और हम आगे गए। ठीक हम 2:15 बजे पहुँचे, हरनाम सिंह राठौर आ गए थे। तो हमने कहा कि मोटू जी आपका क्या प्लान है? सो मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो पहुँच गया हूँ यहाँ के, सरेंडर करेगा या नहीं करेगा, और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बहुत, सो इट्स अ रिस्क एनीवे। लेकिन ऐसा आभास था कि मुझे मारने की ज़रूरत है नहीं। आई मीन मैंने कुछ ऐसा तो किया नहीं उसके साथ, क्योंकि वो बदला ज़रूर लेते हैं अगर आपने कोई उल्टे सीधे काम किए। और फिर वो आए, मैंने ऑफ कोर्स मोटू को सामने रखा कि बुलेट चलेगा तो उसको लगेगा पहले। और अंत में 2:30 बजे वो 3 बंदूकों के साथ आया, मेरा पैर छुआ और बंदूकें नीचे रख दी, और इधर उधर देख रहा था। मैंने कहा चिंता मत करो, ये RI है, मेरे पास कोई बंदूक नहीं। करीब 3:15 बजे हम उसे थाने में, रेस्ट हाउस में लाए, थाने में नहीं लाए, किसी को मालूम नहीं था। और फिर उसने कहा कि मैं शिव जी महादेव का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उनकी एक हरी एम्बेसडर थी हमारे हरनाम सिंह राठौर की, मैंने कहा आप इसको इसी में करा दो, कोई सिक्योरिटी नहीं कुछ नहीं, दर्शन करा के पुलिस लाइन लेते आना। दर्शन कराया,
और उसके बाद वो पुलिस लाइन में उसको बंद कर दिया। 7:30 बजे वोरा साहब आए और गब्बर सिंह ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया। वो क्या फ़ोटो वगैरह ये वो। अब मैं वोरा जी को कान में कहता रहा कि सर ये मेरा नहीं है, ये हरनाम सिंह राठौर ने कराया है। वो कहाँ का सुनते हो, वो भी बीजेपी MLA, ये तो कांग्रेस कहते। कप्तान साहब ने कमाल किया है, अब गज़ब किया है। मुझे बड़ी शर्म आई, लेकिन ऐसा हुआ। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। सीहोर में एक कम्युनल सिचुएशन बिल्डअप हुआ। तो सीहोर इंदौर का हाईवे है, जहाँ बीच में आष्ठा नामक एक जगह आता है। तो हाईवे पे है, स्टेट हाईवे। आष्ठा में एक मर्डर हुआ। तो रात में मैं वहाँ पे गया, देखा। तो मैंने कहा कि भाई केस के बारे में इन्वेस्टिगेशंस वगैरह किया। मैंने कहा ठीक है, बॉडी कल जलाएंगे, बिकॉज अब तो ये हो गया है। और बॉडी जलाने में हाईवे के पास से ही वहाँ जाना था। मैंने कहा देख लेना, अच्छा गार्ड वार्ड लगा लेना, सब कुछ कर लेना, और क्रिमिनल्स हम पकड़ लेंगे। हमने एश्योरेंस दे दिया, सब कुछ कर दिया। दूसरे दिन पता लगा 8:15 बजे कि आष्ठा में घेराव हो गया है, हाईवेज ब्लॉक्ड हो गए हैं, और आधा घंटा लगता है आष्ठा जाने में, और दोनों तरफ से व्हीकल्स जमा हो गए, दोनों तरफ से। जैसे सिचुएशन। और हर बड़े आदमी का वहाँ से जाना होता था, तीर्थों का जाना होता था, इंदौर इज अ हाईवे, बिजनेसमैन का जाना होता था। तो हमने चाको को फ़ोन किया। चाको हमारे दोस्त कलेक्टर था। मैंने कहा चाको चलो भाई, ऐसा ऐसा हो गया। तो हम लोग वहाँ पे गए। अब जब वहाँ पे गए तो पूरी अव्यवस्था थी कि लोग इधर भी पूरा भीड़ मचा हुआ है। फोर्स जो है टूटी फूटी, हमारी एक टूटा फूटा बस हम ले गए थे। 80-81 में कुछ नहीं था पुलिस के पास, खाली डंडा और वो थोड़ा सा हेलमेट जो कि 5 किलो का था, और बहुत ही एक बोरा टाइप का एक शील्ड था। दैट इज़ ऑल वी हैड। तो हम, वो बस भी पीछे से ढड़क ढड़क के चल रही थी, वो भी पहुंची नहीं थी 10 मिनट। तो हमने चाकू को कहा, मैंने कहा यहाँ तो मतलब कि बिल्कुल सर्कस हो रहा है, तुम ऐसा करो। और वो लाश घेर के आया है कर रहे थे। तो हमने कहा चाकू को, मैंने चाकू तुम ये ठेले पे चढ़ जाओ, और उसके बाद भाइयों और बहनों करो सबको। तब तक मैं उसको एक माइक भी ठेला वाला मैंने पकड़ा दिया। तो वो भाइयों और बहनों कर रहे थे। चाकू साहब, मैं यार फोर्स को व्यवस्था कर रहा था। तो उसके बाद जब फोर्स की व्यवस्था की तो मुश्किल से, तब तक वो ढड़क ढड़क के हमारी वो भी आ गई, वो जो डबल टनर बस ऐसे ऐसे चलती थी। वो अभी भी याद है मेरे को। मशाल सिंह साहब थे ड्राइवर उसके। तो मैंने कहा मशाल सिंह, ये मशाल की तरह ही चलती है तुम्हारी बस। और 2 ही बस थे हमारे पास। तो जब वहाँ पे आया तो करीब 18 आदमी हुए टोटल। 18 में 3 तो चल ही नहीं सकते थे। मैंने कहा आप लोग बैठ जाओ। तो 15 आदमी हम लोग थे, और एक हमारा RI पीछे था। तो हवलदार जो था उसके पास था वो फायर करने वाला टीयर गैस शेल। वो 1870 का था, ढूम से आवाज़ करता था, आवाज़ लगता था कि फायरिंग हो गई बिल्कुल। तो मैंने कहा कि तुम लोग लाइन में रहो, हमारा टारगेट ये रहेगा। बड़ा प्लानिंग करके यंग SP आया है, फर्स्ट वाला, पूरा मैंने समझाया उनको। समझ रहे हो ना, पहले हम कहते हैं ऑर्डर करेंगे मार्च, तो तुम लोग मार्च करके बॉडी को कवर करोगे। उसमें ऑब्जेक्शन होगा तो कहते हैं सेकंड टीम जो है एस्कॉर्ट करने के लिए रास्ता बनाएगी। तीसरा जो है कलेक्टर को उतार लेना और पकड़ लेना ताकि उसको कोई पीटे नहीं। तो सब बना उना के रेडी। और उसके बाद मैंने कहा कि सुनो, ये याद रखना कि जब मैं कहूँ यस, तब तुम करना ये, मतलब कि फायर। तो एस करके मैंने ऐसे किया, उसने ढूम फायर कर दिया उसी समय। तो जब वो किया, मैंने कहा आई पुट माई ये लाइक दिस, कि अब तो गए, मतलब विल बी लिंच्ड बाय द क्राउड। ऐसे किया मैंने 5 सेकंड के लिए, और खोली आंख, देखा लोग भाग गए थे। तो मैंने लिटरली कहा पकड़ो, एंड देन दे रैन, गॉट दैट लाश। और वो दौड़ के, कहते हैं, लाश लेके दौड़ रहे थे। क्राउड तब तक भाग गया था, उनको बाद में पता लगा। फिर वो पीछे आने लगे पीछा करने में। तब तक हम लेके उसको ग्राउंड में चले गए थे और उसको जला दिया था। तो अब जो है हाईवे क्लियर हो गया आधे घंटे में। और गजब की तारीफ ही, मतलब कि नया SP आया है, इसने पूरा बिल्कुल साफ कर दिया हाईवे को वगैरह। जोशी जी हमारे रिटायर्ड IG थे, वो आए कंग्रेचुलेट करने के लिए। अब मेरे को बड़ी शर्म आ रही थी कि
तो बाद में डीआईजी ने कहा कि भाई तुम्हारी तो बड़ी तारीफ हो रही है, सीएम ने कहा कि हाईवे क्लियर कर दिया बिल्कुल विदाउट एनी, और किसी को इंजरी भी नहीं हुई। तो फिर मैंने कहा सर मैं बहुत शर्मनाक हूँ, शर्मिंदा हूँ, एक्चुअली ऐसे ऐसे हुआ था। तो डीआईजी खूब हंसे, बोले क्या होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है बहुत कुछ, ये मत समझना कि सब बहादुरी से होता है। तो many a time success comes to you like this. So there are many occasions like this. लेकिन अंत में अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? This is the last. अब वो बात ये है, देखिए हमारे देश में, और इसको आप ज़रा भी बुरा मत मानना, this is a part of our culture. हमारे स्कूलों में कभी ये नहीं पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल 1498, वास्को डिगामा, फलाना, ये ठीक है, सारे जो गोवा कब बना, पांडिचेरी कब बना, उल्लू कब सीधा हुआ, रैट कब नीचे गिरा, यू नो, ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये नहीं बताते कि मुंह कैसे धोते हैं, खड़े कैसे होते हैं, कपड़े कैसे पहनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए, स्वच्छता, क्या क्या पौधे हैं जो कि औषधि के रूप में काम कर सकते हैं, ग्वार पाठा क्या होता है, नीम के फायदे क्या होते हैं, हार्ट अटैक रोकने के लिए छोटी छोटी चीजें, गार्लिक क्या है, हिंदी भूल गया था सॉरी, गार्लिक का हिंदी लहसुन, लहसुन का क्या फायदा है, और कितनी ऐसी चीजें हैं। स्विमिंग जानना चाहिए, गाड़ी चलाना चाहिए, 12वीं क्लास में ही गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, टाइपिंग जानना चाहिए। अमेरिकन स्कूल्स में अगर आपको टाइपिंग, अगर आपको स्विमिंग, और तीसरी चीज़ जो मैंने भाई वो नहीं आती तो आपको पास नहीं किया जाएगा। तो जितनी व्यवहारिक चीज़ें हैं वो हम नहीं सिखाते। मुझे स्कूल में बुलाते हैं कभी कभी तो मैं ज़रूर जाता हूँ, गलती से बुला लिया तो मैं खुद ही इनविटेशन लेके चला जाता हूँ। अब बच्चों को यही बताता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पे बात नहीं करता हूँ। मैंने कहा मेरा अगर स्कूल रहे तो मैं 3 चीज़ पढ़ाऊँ, हिंदी ज़रूर, अंग्रेजी भी, या कोई एक लैंग्वेज, फ्रेंच पढ़ लो, स्पेनिश पढ़ लो, अंग्रेजी, हिंदी, और सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स। सिर्फ ये 3, और चौथा ये सारी चीजें, हाइजीन, एनवायरनमेंट। दूसरी बात, हमारे स्कूल में ये नहीं बताते हैं कैसे बोलना चाहिए, ऐसे करके आप बात करोगे, ऐसे करके बात करोगे, टेढ़े करके रहोगे, पीपल डोंट लुक एट यू, यू माइट बी इन द बेस्ट फर्म्स। कैसे यू शुड रेज योर हाई, एक किताब अपने सर पे रखो, ऐसे करके बैलेंस करो, एंड वॉक फ्रॉम हियर टू हियर। You see how the whole posture changes, and then you speak. You will speak with your elevated voice, and your voice will come correct. ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं कि मेरे दोस्त जो CEOs हैं, कैलिफोर्निया में हैं, लंदन में हैं, फ्लोरिडा में हैं, वो ये कहते हैं कि यशो, इंडियंस को डिग्री तो बहुत है, लेकिन बुरा मत मानना, सहूर नहीं है। किस मौके पर क्या कपड़ा पहनते हैं, क्या कलर पहनते हैं, हाउ डू यू स्पीक। किसी विषय पे अगर आपको कोई अमेरिकन से पूछा जाए, व्हाट इज योर व्यू ऑन टेक्नोलॉजी, इमीडिएटली वो अमेरिकन बताएगा, बिकॉज ही हैज बीन trained to think straight. Technology has both sides. It can be harmful,
if used wrongly. And it can be for the better of mankind, like drones. Drones can be used for life-saving medicines, or it can be used for supplying guns and drugs. Straight, simple, to the point. इंडियन से पूछो आप, सर हम आपको ड्रोन के बारे में विस्तार से बताते हैं, ड्रोन का मतलब क्या है? नहीं सर, हम आपसे पूछ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या है। सुनिए ना, हम बता रहे हैं अभी आपको। ड्रोन फ्लाइज वेरी हाई। ड्रोन मैकेनिज्म इज वेरी पावरफुल, इट इज विदाउट पायलट। आप सुन लो, किसी को भी सुन लो, डिबेट्स, इंडियन डिबेट्स में सुन लो। हाँ, तो ड्रोन से आप वो भी ला ही सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं। पूरा जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, वो तो बड़ा हाई लेवल पे है ना। बट दिस इज अ प्रॉब्लम। और उन्होंने ये भी कहा, दे आर नॉट प्रिसाइज। तो जब हम अपने कंपनी में लेते हैं, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू वॉक स्ट्रेट, हाउ टू स्पीक स्ट्रेट, टू द पॉइंट, हाउ टू वेयर, हाउ टू कम्युनिकेट। आप अपने क्लाइंटेल के पास जाते हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट इन अ मैनर विच इज एब्सोल्युटली प्रिसाइज, in a manner which is appealing, in a manner which actually caters to their requirements. इसीलिए अपनी स्पीच एबिलिटी पे, लिखने की एबिलिटी पे, you want to present a problem. आप जब किसी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करें, can you present them in a form that the person understands? एक बड़ा एक्सपर्ट वही है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज को इजीएस्ट लैंग्वेज में प्रेजेंट करता है। देयर इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एड्रेस इन अमेरिका। अमेरिकन राष्ट्रपति बताते हैं पूरे देश को कि क्या अमेरिका में पिछले साल से हो रहा है, हमने कितना पैसा कमाया, कितना गवाया, क्या हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी थी, कहां कहां थी। और वो ऐसी भाषा में इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज को बताते हैं कि स्कूल का 7वीं साल का बच्चा भी है, वो उसको समझ लेता है। और इंडिया में गलती से अगर आप चले जाओ किसी प्रोफेसर साहब के पास, तो वो यहां पे बोलते हैं। कल हमारी बात हो रही थी HHK से, तो प्रोफेसर साहब यहां पे बोलते हैं, जरूरत है बोलने की यहां। सो आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स बिकॉज लाइफ में यू मस्ट मेक एन इंप्रेशन, यू मस्ट मेक एन इम्पैक्ट। ऐसा लगे कि हाँ, ME Pro के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ये नहीं कि बड़ा सा पिट्ठू लगा लिया पीछे और पहुंच गए हर जगह। नो, दैट्स नॉट डन। कीप इट आउटसाइड, टेक अ पेपर, स्मार्ट पेपर। तो इसलिए आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। यस, तो लेट मी नॉट गो, बट लेट मी टेल यू, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत होपफुल हूं। इसलिए कह रहा हूं कि आपने हमारी बात बड़ी संजीदगी से सुनी, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू talk with youngsters because you are our future. And I appeal to you, keep your moral high. मुझे याद है, मैं एटलांटा ओलंपिक्स में गया 96 में एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी टीम। एंड आई थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी। और पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या इम्प्रेस किया? 2 चीज़। एक तो मैं आपके से यंगस्टर्स के साथ काम कर रहा था, कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे वहाँ पे टू हेल्प इन द एक्सेस टू द ओलंपिक्स, और हम लोग वर्चुअली वहाँ बैठते थे
और DFMD मतलब डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, जहाँ से लोग अंदर आते हैं, 25 लगे हुए हैं। आई वॉज एट मोर्स कैंपस, बास्केटबॉल का था, क्लिंटन की बेटी आई थी वहाँ, तो वो और बच्चे लगे थे वहाँ इस पे DFMDs पे, एंड आई वॉज सिटिंग एट द बैक, दिस इज द सुपरवाइजर, और अमेरिकन, कोई फिनलैंड, कोई फलाना, फिर वो आते थे, सर दिस इज आवर प्रॉब्लम, शुड वी अलाउ दिस और नॉट। अब वो एक स्पेशल इक्विपमेंट कैमरा का शायद नहीं पता लग रहा है। आई सेड वेरी सिंपल, पास इट थ्रू दैट स्कैनर। पास किया स्कैनर में, देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके, आस्क हिम टू ओपन इट। सो दिस, एंड उन्होंने पूरे ओलंपिक्स को संभाला, एंड दिस वर यंग इंस्पायर्ड यंगस्टर्स। और दूसरा जो मैंने बहुत इम्प्रेस किया, जब रात में इनॉग्रेशन हुआ, क्लिंटन आए, देयर वाज दिस पावरफुल सिंगिंग वॉइस में देयर वाज अ लेडी who was singing the theme song saying, dream big but also have the power to implement your dreams. And in the end, वो मेरी डॉटर जो मेरे को ये कोट, शी लव्स दिस कोट, आई ऑलवेज रीड इट एवरीवेयर इन द एंड में, दिस इज माई थीम फॉर यू, मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ, याद रखिएगा इसको। 20 years from now, 20 साल बाद, you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So, throw away the bowlines, sail away from the safe harbor, catch the trade winds in your sails, explore, dream, discover. Thank you.